Hello everyone, welcome back to our channel SSB Success. Today we will be discussing about a lecturate topic India's sports performance. Before starting with the topic, I would just want to give you a gist of what a lecturate is. So, you will be asked to deliver a kind of a lecture for 3 minutes on a topic of your own choice, and you will be given 4 options, out of which one you have to choose and deliver a lecturate. Now, many students find it difficult that how do we have to structure it. Basic things that you need to keep in mind is that it should start with a somewhat introduction जिसमें आप history बता सकते हैं उस topic की. Then you can cover the present scenario, what the government has been doing over the past years, what in your opinion can be done better, and what do you think is the way forward. It applies to almost each and every topic, and we will try to understand it better with the help of today's topic, which is India's sports performance. One of the thing that you can do in your lecturate to stand out in the crowd is to start your lecturate with a quote. Say for example, just how I have added a quote: sports not only build better athletes but also better people. We'll try to understand the meaning of this quote in the video ahead. And then I've added few lines like this you can add according to your own knowledge. The 5S of sports are stamina, speed, strength, skill, spirit. But the greatest of these is spirit. नाउ एज आई डिस्कस्ड, पहले हम थोड़ा सा सेक्शन कवर करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे इस टॉपिक की हिस्ट्री क्या रही है. इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स and traditionally also we have been indulged into a lot number of sports. If we trace the origin of shooting, archery, these are the sports which have been originated in India and have been a part of Indian tradition since a very long time. बट अगर हम बात करें कि प्रोफेशनली इंडिया ने कब पहली बार पार्टिसिपेट किया था किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, तो इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक पार्टिसिपेशन वाज इन द ईयर 1900 and the country won its first individual Olympic medal in 1900. Now these kind of facts add a lot of value to your lecturate. So these things also you can do. Then coming to the next scenario, after independence, India's sports performance improved gradually. And when we talk about sports, अभी तो ऐसा है कि from the past few years or like since a long time, cricket is something that have been everyone's choice, everyone's thing since a long time. But hockey is also a sport जिसमें इंडिया ने over the time काफ़ी अच्छा किया है. Eventually, hockey became country's national sport. Now, apart from games like cricket, hockey, badminton, Indian sport is now expanding to lot many games, especially in track and field, shooting, archery, evidence of which can be seen very clearly in our performance in Tokyo Olympics 2020. Why? Because Tokyo Olympics 2020 became the first event जिसमें इंडिया ने अपना पहला track and field event का gold जीता. And in the Commonwealth Games 2022 also we did a fantabulous job. ठीक है. Apart from that, now when we talk about कि sports का as a sector क्या importance है, why are we discussing this topic and इसकी यूटिलिटी क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स सेक्टर नॉट ओनली सर्व्स एज एन ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन बट ऑल्सो प्रोवाइड सेवरल अदर बेनिफिट्स. उन बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो क्या है. फर्स्ट बेनिफिट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हाउ, वाई? बिकॉज लाइक एज अ नेशन वी आर सो डाइवर्स, एंड जब भी किसी भी गेम में प्लेयर्स आते हैं, प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट, टीम्स बनती हैं, एंड देर आर पीपल फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया, एंड देन दे टुगेदर
fight for a competition. They together win or lose, whatever is there, like they are together in that team and they strive for excellence. They strive for the gold medal or for the trophy, which shows कि कितनी यूनिटी है इतना डाइवर्स नेशन होने के बाद भी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हम कोई इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करते हैं, सो वी गेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू. से फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर 2010 इंडिया hosted Commonwealth Games in New Delhi. So what happened? A lot of people came to India to be a part of Commonwealth Games. उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग आए, टूरिज्म बढ़ा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अ लॉट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इज ऑल्सो डन इन द वेरियस फील्ड्स. सो होस्ट करने से भी हमें बहुत सारा रेवेन्यू जनरेशन होता है. जो इतनी ज़्यादा, लाइक इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कंपैरेटिवली यंग कंट्री. तो जो भी यूथ है इंडिया का, उनकी जो एनर्जी है उसको हम सही डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप खुद भी जानते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, तो यू विल ऑलवेज बी हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. ठीक है. इसके अलावा अगर हम विमेन सेंट्रिक होके अगर बात करें, तो फीमेल्स के लिए इट हैज़ डन अ फैंटाबुलस जॉब ओवर द ईयर्स. हमारे कंट्री की जो विमेन हैं, दे हैव इमर्ज्ड एज सच गुड प्लेयर्स एंड उन्होंने नाम रोशन किया है हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक इवेंट पे, बी इट एशियन गेम्स, बी इट कॉमनवेल्थ, बी इट ओलंपिक्स, एवरीवेयर. एंड इससे होता ये है, जितना ज़्यादा विमेन पार्टिसिपेशन होगा उतना सोशल स्टिग्मा ख़त्म होगा, उतना ज़्यादा विमेन को चांस मिलेगा टू कम अप एंड पार्टिसिपेट, एंड दिस विल इवेंचुअली लीड टू अ बेटर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक फॉर एन इंस्टेंस, अगर हम बात करें कुछ ऐसी विमेन प्लेयर्स की, सो वी हैव मैरी कॉम, वी हैव सानिया नेहवाल. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी ऑल्सो हैव लॉट अदर पीपल लाइक PV सिंधु, वी हैव निखत जरीन, वी हैव मनु भाकर. शी इज़ फ्रॉम शूटिंग, and these two people, she's from badminton and she's from boxing. These people have also made India proud on international platforms, international championships. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ इतना सब होने के बाद भी अभी भी अगर हम बात करें, तो क्या इंडिया अपने पीक परफॉर्मेंस पे है? नहीं. इन द टोक्यो ओलंपिक्स डेफिनेटली वी परफॉर्म्ड वेल. हमने अभी तक की सबसे अच्छी ओलंपिक परफॉर्मेंस दी है, बट क्या वो इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी? नहीं. वाई? नाउ देर आर सेवरल रीजन्स टू इट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि जो फंडिंग होनी चाहिए, जो इंडिविजुअल प्लेयर्स पे जो पैसा लगना चाहिए, जितना उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, आई थिंक वहाँ पे इन माई ओपिनियन ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑल्सो, द फंडिंग इज़ इनएडिक्वेट. देन रिसोर्सेज का डेफिसिट है. रिसोर्स डेफिसिट मतलब दे माइट नॉट बी हैविंग प्रॉपर ट्रेनिंग किट्स, दे माइट नॉट बी हैविंग प्रॉपर कोचेस, दे माइट नॉट बी हैविंग प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट्स, न्यूट्रिशन, physiotherapists, etc., etc. Apart from that, there is also a lack of awareness amongst children and their parents. आज भी if you go to some cities, some families, some parents, they still have this notion कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब. Over the years, India and its players have tried to break this and make it different, make it the other way round. But still अभी भी बहुत सारे families में, बहुत सारे लोगों में ये thinking है कि स्पोर्ट्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं एक करियर देता है. ठीक है. उसके अलावा जब भी कोई एक कंटिनेंट जा रहा है किसी स्पोर्ट्स के लिए, किसी एक चैम्पियनशिप के लिए, तो जो हाई परफॉर्मेंस प्रेशर उन पे रहता है, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर जो कि इंडिया की स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को ओवरऑल हैम्पर करता है. इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज खेलो इंडिया. खेलो इंडिया के दो वेरिएशंस हैं. एक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड अनदर इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. नाउ खेलो इंडिया यूथ गेम्स आर फॉर
younger people, younger children, and university games, as the name suggests, it is self-explanatory. University के students take part in this, and इसने बहुत ज़्यादा tremendously help किया है अच्छे sports persons को निकाल के लेके आने के लिए from the grassroots level. उसके अलावा वी हैव टॉप स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम. इसमें क्या होता है, जो भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे एक्सपेक्टेशंस हैं विच आर लाइक दे हैव बीन परफॉर्मिंग गुड ओवर द ईयर्स, सो व्हाट द गवर्नमेंट डू, उनको फॉर द ओलंपिक एंड द पैरालंपिक वी प्रोवाइड देम ऑल द फैसिलिटीज़ एंड वी गिव देम एडिक्वेट फंडिंग सो दैट वो पूरी अच्छे से मेहनत करके दे प्रिपेयर वेल एंड दे प्ले वेल. देन अवार्ड्स से क्या होता है, अवार्ड्स देने से दे गेट अ पुश, दे गेट मोटिवेशन कि दे आर गेटिंग अवार्डेड. स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिलते हैं, पेंशन्स मिलती हैं मेरिटस स्पोर्ट्स पर्सन्स को, एंड वेलफेयर फंड इज़ देयर, डेवलपमेंट फंड इज़ देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग सेंटर्स हैव ऑल्सो प्रूव्ड टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प. ठीक है, उसके बाद देर आर फ्यू फैक्टर्स जिसमें गवर्नमेंट और अच्छा बेटर कर सकती है. उनके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगा कि हमें फंड अलोकेशन को बढ़ाना है. हम अगर थोड़ा सा और फंड बढ़ाएंगे तो हम बेटर चीज़ों में और ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर सकेंगे. से फॉर एग्जांपल हम बेटर कोचेस लेके आ सकेंगे, हम बेटर किट्स लेके आ सकेंगे, हम बेटर इक्विपमेंट्स लेके आ सकेंगे. ठीक है, एंड दीज थिंग्स विल इवेंचुअली हेल्प आवर स्पोर्ट्स पर्सन्स टू प्ले वेल. उसके बाद सेकेंड थिंग इज़ कि जो भी डिज़र्विंग प्लेयर्स हैं उनको मोर जॉब्स ऑफर होनी चाहिए. दे शुड हैव दिस थिंग इन माइंड कि इफ़ दे आर अ डिज़र्विंग प्लेयर दे विल बी हैविंग जॉब्स. इससे क्या होगा, एक सोशल सिक्योरिटी का सेंस मिलेगा प्लेयर्स को, विच विल एनकरेज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू इंक्रीज देयर रिस्क एपेटाइट एंड एंटर इन टू द प्ले फील्ड. उसके बाद ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी ब्रॉट इन द सिलेक्शन प्रोसीजर. आज भी मेनी अ टाइम्स बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिन्हें ये शिकायत होती है दैट द प्रोसेस हैव नॉट बीन ट्रांसपेरेंट, दे हैव नॉट हैव बीन गिवन द राइट चांस to play well, to showcase their talent. So these things would be eliminated if we have a better and more transparent selection procedure. Apart from that, एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइक योर एजुकेशन एंड एवरीथिंग स्टार्ट सबसे बेसिक आपके घर से. सो पेरेंट्स शुड बी इक्वली अवेयर कि क्या फ़ायदे होते हैं स्पोर्ट्स में भेजने के, एंड क्या चीज़ें एक बच्चा लर्न करेगा इफ़ ही और शी इज़ इनटू स्पोर्ट्स. सो the awareness has to be amongst parents, the educational institutions, be it your school, college, university. These institutions should also be equally aware and they should also be equally supportive. And for the same what they can do कि अभी जो sports quota होता है universities में उसको they can increase so that they can have more number of players into their universities and better participation in the championships. Apart from that, we should also be having equal focus on creating more coaches and physiotherapists. अभी हमें क्या करना होता है, we are not having adequate coaches and we hire them from abroad. उसमें हमारा फंड चला जाता है. सो उसको कट डाउन करने के लिए हम अपने खुद के रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं. वी कैन हैव मोर एंड बेटर कोचेस, मोर एंड बेटर फिजियोथेरेपिस्ट्स. ये डायरेक्टली हेल्प करेंगे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को एंड दिस विल डायरेक्टली इंक्रीज एंड इन्हांस आवर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. ठीक है, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो स्पोर्ट एक ऐसा स्टेट सब्जेक्ट है जहाँ पे इक्वली हर एक इंसान को आगे आना पड़ेगा. वी विल हैव टू टेक कलेक्टिव एफर्ट्स, देन ओनली वी विल बी एबल टू प्रोग्रेस इन स्पोर्ट्स एज अ कंट्री. ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दें उन स्पोर्ट्स पर्सन्स को, उन प्लेयर्स को जो हमारी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, और जो खेलना चाहते हैं उनको भी हम इक्वली मोटिवेट करें एंड सपोर्ट करें so that they are able to represent our country and we then only will be able to emerge as a global superpower in the sports sector. So these were the major points that has to be covered when we talk about India's sports performance.
Please let me know what are your views, and do let me know your views on the same topic. Thank you. Jai Hind.